السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کا ساتھ دوں گا محمد انیس، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ خبرنامے میں فی الوقت آپ کو واپس یہ چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ بلیٹن کا آغاز ہیڈ لائن سے۔ تمام شہریوں کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی مذہب کے نام پر انتشار پھیلانے والے عناصر کے خلاف سخت اقدامات کی ہدایت۔ گلگت بلتستان میں ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت اور امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ۔ جاری ترقیاتی منصوبوں کی افادیت کا جائزہ لیا جائے اور اہمیت کے حامل منصوبوں پر زیادہ توجہ مرکوز کی جائے۔ نگراں وزیر اعظم۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ اور وزیر اعلیٰ گلبر خان کی ملاقات۔ ترقیاتی منصوبوں، انتظامی امور اور امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ۔ عوامی فلاحی منصوبوں خصوصاً صحت اور تعلیم کے شعبوں کی ترقی کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم کا دورہ ہے گلگت بلتستان۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ آمد پر پولیس کے چاکو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ یادگار شہداء پر حاضری، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ اسکول کے طلبہ طالبات کی وزیر اعظم سے ملاقات، بچوں کے بنائے ہوئے مختلف ماڈلز کا معائنہ کیا۔ طلبہ و طالبات کی صلاحیتوں اور اساتذہ کی خدمات کی تعریف۔ معیشت بہتری کی جانب گامزن۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مسلسل بہتری۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ₹1.27 کمی، قیمت ₹299.89 ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 90 پیسے سستا۔ ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف بھرپور آپریشن۔ تقسیم کار کمپنیز کی جانب سے مختلف علاقوں میں کارروائیاں۔ بجلی چوری کے 6000 سے زیادہ کیس پکڑے گئے، 369 بجلی چور گرفتار۔ مقدمات درج، 44 کروڑ روپے سے زیادہ جرمانے، 16 کروڑ 20 لاکھ روپے کی وصولی۔ ملک بھر میں چینی کے ذخیرہ اندوزوں اور سمگلرز کے خلاف گھیرا تنگ۔ بہاولپور، لکی مروت، کوہاٹ میں گوداموں پر چھاپے، ہزاروں بوری چینی برآمد، گودام سیل۔ کمکول افغان مہاجر کیمپ کے گودام سے 6 ٹن اور بہاولپور سے 14,000 کلو چینی قبضے میں لی گئی۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی صدارت میں لندن میں کامن ویلتھ یوتھ منسٹرز اجلاس۔ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز پر قابو پانے کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کی فلاح و بہبود ہماری ترجیح ہونی چاہیے۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام حکومت کا اہم پروگرام ہے جو نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور پسماندہ نوجوانوں کو مرکزی دھارے میں لانے کے لیے کوشاں ہے۔ نگراں وزیر خارجہ کا خطاب۔ مادر وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو قوم کا سلام۔ میجر عزیز بھٹی نشان حیدر جنگ ستمبر میں شجاعت کی داستان رقم کرتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ شہید کے مزار پر پروقار تقریب۔ آرمی چیف کی جانب سے شہید کے مزار پر پھول چڑھائے گئے، چاکو چوبند دستے کی سلامی۔ ملتان میں پولیس شہداء کے خاندانوں میں پلاٹس الاٹمنٹ لیٹر تقسیم۔ فوج اور پولیس کے شہداء ہمارے ہیرو ہیں جنہوں نے سرحدوں اور ہمارے گھروں کی حفاظت کرتے ہوئے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ زندہ قومیں اپنے ہیروز کو فراموش نہیں کرتی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی۔
पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस की बहरी मशकें सऊदी अरब में ख़त्म पजीर, खतरात के खिलाफ मुश्तरका मैरीटाइम ऑपरेशंस का मुजाहरा। पाक बहरिया, सऊदी बहरिया और फजाइया के यूनिट्स ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया। अफगान सूबे पख्तिगा में दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान हलाक। दहशतगर्द बारूदी सुरंग की जद में आकर हलाक हुआ। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द बादशाह खान पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। राजौरी में बेगुनाह नौजवान शहीद। रवां साल काबिज फौज ने 68 कश्मीरियों को शहीद किया। 13 नौजवानों को दौरान हिरासत शहीद किया। हुर्रियत रहनुमाओं समेत 2900 अफराद के काले कवानीन के तहत गिरफ्तारी हुई। G20 इजलास, कांग्रेस रहनुमाओं ने मोदी को आड़े हाथों दिया। समिट मोदी के अगले इंतखाबात में कामयाबी का मोहरा करार। मोदी हुकूमत नफरत अंगेज तकारे, टारगेट किलिंग और मुकद्दस मकामात पर हमलों पर खामोश रही। हरियाणा और उत्तराखंड में मुनज़्ज़म मुहिम से समाजी दूरियां पैदा की गईं। नरेंद्र मोदी की समिट में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर गुफ्तगू उनके इक़दामात के बरक्स और मुतसादिम थी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज। अगस्त के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीत लिया। 3 मरतबा अवार्ड जीतने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। समुद्री तूफान के बाइस लीबिया के मशरिकी शहर दरना में तबाही। हलाकतों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। सैकड़ों लापता। पाकिस्तान का कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। मुश्किल वक्त में लीबिया के अवाम और रियासत के साथ खड़े हैं। सिफारती मिशन लीबिया में मुकीम हम वतनों की हर मुमकिन मदद के लिए मुकामी हुकाम से राबते में है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। मराकश में तबाहकुन ज़ल्ज़ला। अमवात की तादाद 2900 से तजावुज कर गई। 25000 से ज्यादा जख्मी। मकामी और बैन अल-अक़वामी इमदादी टीम्स मलबे में जिंदा बच जाने वालों की तलाश में मसरूफ। रेड क्रॉस के मराकश के लिए फौरी तौर पर 10 करोड़ डॉलर इमदाद की अपील। और मुमताज शायर और मुसन्निफ रईस अमरोहवी का यौम पैदाइश। और गिलगित बल्तिस्तान में खतरनाक पहाड़ी पर फंसे स्लोवाकिया के पैराग्लाइडर्स को मकामी रज़ाकारों की तरफ से रेस्क्यू करने की रिपोर्ट भी आज की खबरनामे में शामिल है। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। गिलगित बल्तिस्तान में तमाम मुतल्लिका हुकाम को हिदायत कर दी गई है कि मजहब के नाम पर इंतशार फैलाने वाले तमाम अनासिर की बरवक्त निशानदही करके उनके खिलाफ सख्त इक़दामात उठाए जाएं। वज़ीर आज़म ने ये बात गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कही। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान इंतजामिया और सियासी क़यादत को तमाम मौजूदा तरक्याती मंसूबों की अफादियत का जायजा लेने की हिदायत की। निगरान वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म को IT, सेहत, तालीम और दीगर शोबों में पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अज़ला बिलखुसूस ल्यामर और स्टोर के अज़ला में तालीम के शोबे के कई मसाइल हल किए जा चुके हैं। तालीमी शोबे में इक़दामात में तलबा को ग़िज़ा की फराहमी के प्रोग्राम, तालीमी इमारतों की असर नौ तामीर, शिकस्ता हाल इमारतों की बहाली, असातिज़ा के पेशा वाराना तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी स्मार्ट स्कूल्स की तामीर सर फहरिस्त है। ब्रीफिंग में बताया गया कि गिलगित बल्तिस्तान में नफ्सियाती अमराज के बढ़ते हुए रुझान के सद्देबाब के लिए 24 घंटे फाल रहने वाली हेल्पलाइन कायम की गई है। शुरका को माहौलियाती और सियाहती शोबों में मुस्बत इक़दामात के बारे में आगाह किया गया। वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान में गंदम की काश्त और इसकी पैदावार पर सब्सिडी की फराहमी, गिलगित बल्तिस्तान में पन बिजली की पैदावार की हकीकी इस्तेदाद और मौजूदा पैदावार और बजट की सूरत हाल पर भी ब्रीफ किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने मुलाकात की। गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली इस मुलाकात में गवर्नर ने वज़ीर आज़म की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करने और इलाके की तरक्की में उनकी खुसूसी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने निगरान वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान के इंतजामी उमूर और अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान ने भी मुलाकात की। गिलगित बल्तिस्तान में होने वाली इस मुलाकात में वज़ीर आला ने निगरान वज़ीर आज़म को जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आला ने गिलगित बल्तिस्तान में अवामी फलाही मंसूबों बिलखुसूस सेहत और तालीम के शोबों की तरक्की के लिए हुकूमत के इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत की तरक्की के लिए हुकूमत के मंसूबों से आगाह भी किया।
इस मौके पर वजीर आला गुलबर खान ने अनवारुल हक काकड़ को गिलगित बल्तिस्तान की रिवायती पोशाक भी पेश की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गिलगित बल्तिस्तान में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के जागो चौबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। निगरान वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान के स्कूल्स की तरफ से लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी मुआयना किया और बच्चों की काबिलियत की तारीफ की। तफसील बताएंगे असदयार खान। वजारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गिलगित बल्तिस्तान का ये पहला दौरा है। वजीर आज़म ने वजीर आला सेक्रेटेरिएट में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को वजीर आला सेक्रेटेरिएट में गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। बाद में निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों से मुलाकात की और उनके बनाए गए साइंसी और तालीमी मॉडल्स का मुआयना किया। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान ने वजीर आज़म को इस हवाले से ब्रीफिंग दी। वजीर आज़म को बताया गया कि गिलगित बल्तिस्तान में स्टीम, कंप्यूटिंग, एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को निसाब में शामिल किया गया है, जिससे बच्चों की सलाहियतों को निखारने में मदद मिली है। इस मौके पर बच्चों ने निगरान वजीर आज़म को अपने अपने तालीमी मॉडल्स के बारे में आगाह किया। हमारे इलाके में टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं। अक्सर हम टीवी में भी देखते हैं, मोबाइल में भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अगर उनकी आंख भी अगर बंद हो जाए, वो नींद में चले जाए, तो ये बजर बजाएगा। जब तक वो आंख नहीं खोलेंगे, बजर बंद नहीं करेंगे, तब तक ये बजता रहेगा। हर तरह की साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सर, इसमें हम लोगों ने एक माइक्रोफोन लगाया है। जब भी हम लोग इस माइक्रोफोन के पास कोई साउंड करते हैं तो ये माइक्रोफोन साउंड को कैच कर देता है और आगे जाकर एम्पियन टाइप के कुछ ट्रांजिस्टर है जो उस बैटरी को सिग्नल देते हैं और हमारी साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कौन सी क्लास में हो? 7 सर। 7 में? तो तुम इतने छोटे हो, 7 में कैसे पहुंच गए? कचरा कुछ भी इसके सामने लाते हैं तो ये खुद ब खुद खुल जाता है। 5 सेकंड के अंदर खुद खुल जाता है और 5 सेकंड के अंदर खुद वापस बंद हो जाता है। निगरान वजीर आज़म ने बच्चों के तालीमी मॉडल्स में गहरी दिलचस्पी का इजहार करते हुए साइंस में बच्चों की दिलचस्पी और उनकी तख्लीकी कोशिशों को सराहा। इस पे ऊपर सनलाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ज़्यादातर घरों में गैस लीक होने की वजह से बहुत सारे हादसा पेश आते हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा डिटेक्टर, ऐसा प्रोजेक्ट बनाऊं जिसके ज़रिए इन हादसा से हम बचे रहें। ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम बनाए जो पौधों को उनकी मिकदार के मुताबिक पानी देता है। डाटा डालते हैं उसमें कि इतने पौधे को इतनी ज़रूरत है। ये मॉइस्चर सेंसर। अच्छा, मॉइस्चर सेंसर। इसको एक स्पेशल सर्टिफिकेट इशू। ठीक है। इस मौके पर निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हमारे बच्चों में तवानाई के शोबे में दरपेश मसाइल और उनके हल के हवाले से शऊर मौजूद है। उन्होंने कहा कि इन मॉडल्स को देखकर साबित होता है कि हमारे बच्चों में साइंस के मैदान में आगे बढ़ने की मुकम्मल सलाहियत है। इससे पहले निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ गिलगित बल्तिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर गिलगित पहुंचे तो हवाई अड्डे पर गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह, वजीर आला गुलबर खान, चीफ सेक्रेटरी मयूद्दीन मानी और आला हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। निगरान वफाकी वज़रा मीर सरफराज बुगटी और मुर्तज़ा सुलंगी भी वजीर आज़म के हमरा हैं। असदयार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है और ओपन मार्केट और इंटरबैंक पे डॉलर की कीमत 300 रुपए से नीचे आ चुकी है। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अहमद खान। हुकूमत का डॉलर माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन जारी है और डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार है, जबकि डॉलर जखीरा करने वाले अनासिर अब ओपन मार्केट में डॉलर फरोख्त कर रहे हैं। डॉलर की कीमत में कमी का बरह रास्त असर इंटरबैंक और ओपन मार्केट पर पड़ा है, जिससे बैरूनी अदायगियों और दरामदी बिल में खातरख्वाह कमी आई है। माशी माहिरीन का कहना है कि डॉलर की स्मगलिंग को रोकने और डॉलर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन से हुंडी और हवाला का कारोबार करने वालों की हौसला शिकनी हुई है और अब बैरून ममालिक से तरसीलात ज़र बरह रास्त बैंकों में आएगी। होर्डिंग करके लोग डॉलर बैठे हुए थे कि 350 के ख्वाब देख रहे थे। मेरे ख्याल में उनके ख्वाब वो पूरे नहीं होंगे। ओपन सस्ता और इंटरबैंक ऊपर है, तो उसके वजह से क्या होगा कि आपके रेमिटेंस आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। आपके इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आएंगे। जो पैनिक थी ना कि इकोनॉमी में कि फ्री फॉल था, वो अब खत्म हो जाएगा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में कमी वाक़ई हुई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.27 की कमी हुई, जिसके बाद डॉलर की कीमत ₹299.89 पर आ गई है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 90 पैसे की कमी के बाद डॉलर की कीमत खरीद ₹297 पर आ गई।
जबकि कीमत फरोख्त 300 रुपए हो गई है। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव जारी है और आज भी सोने की फी तोला कीमत 2,09,000 रुपए पर आ गई है। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। दूसरी जानिब बैरूनी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए हुकूमती इक़दामात में तेज़ी आ गई है। खुसूसी सरमायाकारी सूरत कौंसिल से मुतल्लिक़ सफ़ीरों के लिए वज़ारत ख़ारजा में वर्चुअल ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला साजी को तेज करने और मुल्क में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के साथ साथ वन विंडो प्लेटफार्म के तौर पर काम करने के लिए SIFC तश्कील दी है। इस मकसद के लिए वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी डॉक्टर जाहज़ेब खान ने वज़ारत ख़ारजा में खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के क़याम, कानूनी फ्रेमवर्क और दीगर पहलुओं से मुतल्लिक़ सफ़ीरों को तफसीली वर्चुअल प्रेजेंटेशन दी। सफ़ीरों को 4 अहम शोबों IT, ज़राअत, तवानाई और कानकनी में सरमायाकारी के मौक़ों के बारे में आगाह किया गया। ब्रीफिंग से SIFC और बैरूनी मुल्क मिशंस के दरमियान एक सेहतमंद और नतीजा खेज ताल्लुक का आगाज हुआ है और ये सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। तवानाई के शोबे को दरपेश मसाइल के हल के लिए निगरान हुकूमत की संजीदा कोशिशें। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, जिससे तवानाई बहरान पर काबू पाने समेत बढ़ते हुए गर्तशी कर्जों पर काबू पाने में मदद मिलेगी। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद शाहिद। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पूरे मुल्क में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की कार्रवाइयों में सैकड़ों कुंडे हटा दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 400 से ज़ायद कुंडे हटाए जा चुके हैं, जिन पर बिजली चोरी की मद में भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। पेस्को के मुताबिक 200 से ज़ायद बिजली चोरों के खिलाफ FIR के इंदिराज के लिए दरख्वास्त जमा कराई जा चुकी है। पेशावर, मर्दान, खैबर और बनू समेत दीगर इलाकों में मुतअद्दिद बिजली चोरों को मौके पर गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पेस्को के मुताबिक बिजली चोरों की मज़ाहमत के बावजूद ऑपरेशन जारी है। इंतजामिया की तरफ से पेस्को टास्क फोर्स को सिक्योरिटी फराहम की गई है। बिजली चोरी और मीटर्स के गैर कानूनी तनसीब के खिलाफ ISCO की जानिब से भी कार्रवाइयाँ जारी हैं और अब तक कई ISCO अफसरान और स्टाफ को मुअत्तल कर दिया गया है। ISCO चीफ ने कहा है कि बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम को हर सूरत कामयाब बनाएंगे। बिजली चोरी में शामिल मुलाजिमीन और सारिफीन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। इस्लामाबाद के साथ साथ रावलपिंडी, अटक, जहलम और चकवाल में भी बिजली चोरों के खिलाफ ISCO की कार्रवाइयाँ जारी हैं। बिजली चोरों के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान मजमूई तौर पर 217 बिजली चोर पकड़े गए, जिनमें 78 घरेलू, 8 कमर्शियल, 1 ज़री और 4 इंडस्ट्री के कनेक्शन शामिल हैं, जिन पर 1,96,00,000 से जायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ शुरू किए गए मुहिम से मुल्क में बिजली बहरान पर काबू पाने और तवानाई के शोबे में बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जे को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। मोहम्मद शाहिद, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर वजारत तवानाई का मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है और भारी जुर्मानों के साथ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। सुई गैस स्पेशल टास्क फोर्स ने गैस चोरों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। रिपोर्ट कर रहे हैं वकार हैदर। सुई गैस स्पेशल टास्क फोर्स का इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गैर कानूनी गैस इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ एक्शन। इस्लामाबाद के सेक्टर G7 की मारूफ दरसगाह में गैर कानूनी कनेक्शंस को काट दिया। सुई नौतरन गैस के सीनियर इंजीनियर एहसान इलाही मिर्जा ने मीडिया टॉक में कहा है कि गैस चोरी करने पर मदरसा की इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कहा दरसगाह के खिलाफ गैस चोरी की शिकायत थी, जिससे कौमी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुँचाया जा रहा था। ऐसी ही एक कार्रवाई थाना खन्ना की हदूद मौजा गंगाल में भी की गई और गैस चोरी करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब बिजली चोरों के खिलाफ भी हुकूमत शिकंजा कस रही है। वजारत तवानाई ने सिर्फ आज के दिन बिजली चोरी के 6,215 केसेस पकड़े हैं, 359 बिजली चोर गिरफ्तार जबकि 2,380 मुकदमा दर्ज किए हैं। वजारत तवानाई ने मुल्क भर में बिजली चोरों को 441 मिलियन रुपए के जुर्माने किए, जबकि बिजली चोरों और नादहिंदगान से 162 मिलियन रुपए वसूल भी कर लिए गए। सेक्रेटरी पानी और बिजली ने 7 सितंबर से 12 सितंबर तक होने वाली बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों को भी सोशल मीडिया पर जारी कर दिया है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सैकड़ों बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करके करोड़ों रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। तफसील बता रही हैं लाहौर से फरहाना खान। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला छठे रोज भी जारी रहा। लेस्को की हदूद में ऑपरेशंस के दौरान तमाम सर्कल्स में 205 बिजली चोरी के कनेक्शन पकड़े गए, जिनमें 1 सनती, 6 कमर्शियल और 198 घरेलू सार्फिन शामिल हैं। तमाम कनेक्शंस मुनक़ते करके उन पर 1,85,00,000 से ज्यादा का जुर्माना आयद कर दिया गया है, जबकि 105 बिजली चोरों के खिलाफ FIRs भी मुताल्लिक़ा थानों में दर्ज कर दी गई है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद बिजली चोर कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। लेस्को वाद कंपनी है, इसने 3-4 माह के अंदर
तकरीबन 30 के करीब जो बड़े स्टीलर थे, जो बिग फिशेस थी, जिनमें इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, फर्नेसेस आती हैं, और वो हमने अरेस्ट किए और उनको 400 मिलियन का हमने फाइन किया। ये हमारा प्रोसेस जो है सेक्रेटरी पावर की इंस्ट्रक्शन पे इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। गैपको रीजन में दर्जनों बिजली चोरों को रंगे हाथों पकड़ा गया, जिससे केसेस की मजमूई तादाद 178 हो गई है, जिनमें 11 जमींदार भी शामिल हैं। बिजली चोरों पर 1 करोड़ 13 लाख के जुर्माने आयद किए गए हैं। गैपको हुकाम ने 15 रोज में बिजली चोरी पकड़ने के मतलूबा परफॉर्मेंस न दिखाने वाले अफसरान को फील्ड से फौरी तौर पर हटाने का फैसला किया है। मुल्क में जहाँ एक तरफ बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है, वहीं बिजली चोरों की सहूलतकारी में मुलव्वस बिजली की तकसीम कार कंपनियों के अफसरों और अहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। फेस्को रीजन में मजमूई तौर पर 363 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 127 के खिलाफ FIRs का इंदराज किया गया है। बिजली चोरों पर अब तक 1 करोड़ 45 लाख से ज्यादा जुर्माने आयद किए गए हैं। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मैप्को ने जनूबी पंजाब में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। 2 अलग अलग ऑपरेशंस में एक रोज में मजीद 23 बिजली चोरों को पकड़ा गया, जबकि 1 करोड़ 14 लाख रुपए से ज्यादा वाजबात की अदम अदायगी पर 13 डिफॉल्टर्स के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। तफसील बताएंगे शिराज दुरानी। जनूबी पंजाब में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के 5 रोज में मैप्को ने अब तक 1597 बिजली चोरों को पकड़ते हुए 10 करोड़ 14 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है। 676 सार्फिन के बिजली साबित होने पर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। ऑपरेशन के 5वें रोज रहीम यार खान में साबिक वफाकी वजीर का चीफ कोऑर्डिनेटर बिजली चोरी करते पकड़ा गया। सारिफ के जिम्मे ज़रूरी कनेक्शन पर 13 लाख रुपए की रकम वाजिबुल अदा भी है। गुज़श्ता 5 रोज में मैप्को ने मुल्तान में 257, डेरा गाजी खान में 404, विहाड़ी में 102, बहावलपुर में 157 और रहीम यार खान में 166 बिजली चोर शिकंजे में आए। साहिवाल में 166, मुजफ्फरगढ़ में 195 और बहावलनगर में 73 बिजली चोर पकड़े गए। वाजबात की अदम अदायगी पर मैप्को रीजन में नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन में 1 करोड़ 14 लाख रुपए से जायद वाजबात की अदम अदायगी पर 13 डिफाल्टर्स के कनेक्शन मुनक़ता किए गए। ऑपरेशन के पहले रोज ज़रूरी डिफाल्टर्स के कनेक्शन मुनक़ता करके ट्रांसफार्मर उतार कर कब्जे में ले लिए गए। आरिफ वाला में 56,40,000 रुपए के बकाया जात अदा न करने पर बिजली बंद करके 8 ट्रांसफार्मर उतार लिए गए। मुल्तान, लोधरा, खानपुर, मुजफ्फरगढ़ और पाकपतन के इलाकों में भी लाखों रुपए के डिफाल्टर्स के कनेक्शन मुनक़ता किए गए। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। बलोचिस्तान में कैस्को ने बिजली चोरी में मुलविस 470 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को दरखास्त की है। कैस्को तर्जुमान के मुताबिक बिजली चोरी में मुलविस 38 लोग गिरफ्तार, जबकि 41 के खिलाफ FIR भी दर्ज की जा चुकी है। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का कहना है कि बिजली चोरों पर 4,18,000 यूनिट्स डिक्टेशन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं। चोरी शुदा यूनिट्स की कीमत 2 करोड़ रुपए से जायद है। उधर चीनी की स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई की वजह से मुल्क भर की तरह पंजाब में भी चीनी के नर्ख में कमी का रुझान जारी है। लाहौर में चीनी 175 से 180 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। चीनी की स्मगलिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे की वजह से मुल्क में गुज़श्ता 6 माह के दौरान चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो से ऊपर चली गई। ताहम ज़ख़ीरा अंदोज़ों और चीनी की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वजह से चीनी की कीमत 175 रुपए फी किलो तक आ गई है। जनूबी पंजाब में चीनी की एक्स मिल प्राइस 157 रुपए 50 पैसे और वस्ती पंजाब में 167 रुपए 50 पैसे फी किलो पर आ गई है। लाहौर की अकबरी मंडी में चीनी के 50 किलो बैग की होलसेल कीमत कम होकर 8,200 रुपए पर आ गई है। होलसेल में चीनी की कीमत 164 रुपए, जबकि परचून में चीनी की कीमत 175 से 180 रुपए फी किलो पर आ गई है। परचून मार्केट में एक हफ्ता कबल चीनी 185 से 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही थी। चीनी स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से मार्केट पर दबाव कम हुआ है। मार्केट में चीनी की कीमत में मजीद कमी का इम्कान है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। चीनी माफिया के खिलाफ निगरान हुकूमत के क्रैकडाउन के बाद मार्केट में चीनी की कीमत दिन ब दिन कम हो रही है। ताजिर बरादरी और अवाम ने चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन को सराहा है। तफसील अली असगर अरबाब से। चीनी हमारी घरेलू जरूरत के साथ साथ फूड इंडस्ट्री की अहम जरूरत है। जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के जरिए चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कीमत में इजाफा किया जाता है। हुकूमत की जानिब से चीनी की स्मगलिंग को रोकने और जखीरा अंदोजी के खात्मे के लिए शुगर माफिया, स्मगलर्स
और जखीरा अंदोजों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है, जिसके बायस कराची की मार्केट में चीनी की कीमत कम हो गई है। चीनी की रेट कम होना शुरू हुए, वो अभी तक कम हो रहे हैं और इसमें मजीद इंशाल्लाह कमी की उम्मीद है। केयरटेकर गवर्नमेंट आई है, उसने स्टेप्स लिए हैं और शुगर की प्राइस नीचे आई है, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक संगीन जुर्म है। इस जुर्म में जो भी मुलविस है, चाहे उसका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ हो, वो सियासतदान है, बिजनेसमैन है, उनके खिलाफ बिल्कुल गैर जानबदार एक्शन होना चाहिए। 38 मिल्स है हमारे मुल्क के अंदर, यानी कि अपना ठट्टा में है, मीरपुर खास में है, बदीन में है, पंजाब के अंदर है। ये क्यों यानी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं? आप 3 महीने पहले 120 रुपये थी और 90 रुपये होलसेल में थी, एकदम 200 रुपये क्यों हुई चीनी? ताजिर बरादरी का कहना है कि चीनी की किल्लत में शुगर माफिया के साथ सट्टा माफिया भी अहम किरदार अदा करता है। ताजिर बरादरी नहीं करती, हाँ मिल मालकान ज़रूर करते हैं। उसके साथ एक सट्टा माफिया होती है कि जो सट्टा खिलाती है मिल मालकान को, वो ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सट्टा माफिया का चक्कर ये है कि वो हर चीज़ में खेलते हैं। अब चीनी उनके बस से बाहर हो गई, अब वो अजनास में घुस जाएंगे। चीनी की कीमत में निचली सतह पर इजाफे को रोकने के लिए कराची में प्राइस कंट्रोल कमेटियों को भी मौसर अंदाज से मुतहरिक करने की जरूरत है, ताकि अवाम के लिए मार्केट और सुपर स्टोर्स में कम कीमत पर चीनी दस्तयाब हो। हुकूमती इक़दामात के बायस मार्केट में चीनी की कीमत कम हो गई है। अगर इन इक़दामात को भरपूर अंदाज से जारी रखा जाएगा तो मार्केट में चीनी की कीमत मजीद कम हो सकती है। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। मुल्क भर में चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ हुकूमत की जानिब से क्रैकडाउन जारी है। कोयटा में ऑपरेशन के दौरान 1214 टन चीनी बरामद की गई। तफसील बता रहे हैं फहद अजीज। मुल्क भर की तरह कोयटा में चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों और स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। कोयटा में 8 रोज में चीनी के 9 गैर कानूनी गोदाम सील किए गए हैं। ऑपरेशंस के दौरान 1214 टन चीनी बरामद की गई है। चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस 9 मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी किया गया है। कोहाट में जिला इंतजामिया की जानिब से गोदाम पर छापा मार कर 6 टन चीनी बरामद कर ली गई है और मुलजिम को मौके पर भी गिरफ्तार किया गया है। बरामद की गई चीनी महकमा फूड्स के हवाले कर दी गई है। भावलपुर में भी चीनी की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तर्जमान FIA के मुताबिक 14,000 किलो से जायद ज़ख़ीरा अंदोज़ी की गई चीनी गोदाम से बरामद की गई थी। छापे के दौरान ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलविस मुलजिम को भी गिरफ्तार किया गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से लकी मरवत के मुख्तलिफ इलाकों में कायम चीनी के गोदामों पर छापे मारे गए और चीनी की हजारों बोरियां बरामद करके गोदाम सील कर दिए गए हैं। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर यासिर नज़ीर का कहना था कि किसी को भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को चीनी की कीमतों से मुतालिक मुकदमे का 30 रोज में फैसला करने की हिदायत की है। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वफाकी हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के खिलाफ मामले की समाअत करते हुए हाई कोर्ट को रोजाना की बुनियाद पर समाअत करते हुए मामले का मुतालिका मुद्दत में फैसला करने की हिदायत की है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत ने दरपेश मसाइल से आगाह किया। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान में गंदम की पैदावार पर सब्सिडी की फराहमी का मामला ज़ेर बहस आया, जिस पर निगरान वज़ीर आज़म ने वफाक की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म ने गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत को हुकूमती सब्सिडी पर इंतज़ार करने के बजाय काबिल काश्त ज़मीन की ज़रई इस्तेदाद को बढ़ाकर खुद इन्हिसारी की हिदायत की। उन्होंने कहा कि तमाम शोबों में खुद इन्हिसारी पैदा करने के लिए तरफ तवज्जो मरकूज़ करना होगी। गिलगित बल्तिस्तान काबीना ने वज़ीर आज़म को गिलगित में सरमायाकारी और कारोबार के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ दी। वज़ीर आज़म ने हुक्काम को गिलगित बल्तिस्तान की माशी बहाली के लिए हिकमत अमली तश्कील देने की भी हिदायत की। अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के शहरियों की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। मजहब के नाम पर इंतशार फैलाने वाले अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने फवाद हसन फवाद को निगरान वफाकी काबीना में वजीर मुकर्रर किया है। सदर मुमलिकत ने यह तकर्रुरी निगरान वज़ीर आज़म की सिफारिश पर आइन के आर्टिकल 224 के तहत की है। चीन, वेनेजुएला और कोलंबिया के नामजद सफीरों ने इस्लामाबाद में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को इसनाद सिफारत पेश की। सदर मुमलिकत ने चीन के साथ तिजारत, मईशत, सकाफत और दिफा के शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से वेनेजुएला के नामजद सफीर राफेल सिल्वा पोंटे ने भी मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने कहा कि वेनेजुएला के सरमायाकार पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठा सकते हैं।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से कोलंबिया के नामजद सफ़ीर जोआ इनाबेल रियानो विलांडिया ने भी मुलाकात की। मुलाकात में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कोलंबिया के साथ इक़्तिसादी, सकाफ़ती और तजारती ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि नौजवानों की फलाह बहबूद हमारी तरजीह होनी चाहिए। बेहतर मौक़े की फ़राहमी से इन्हें मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जा सकता है। लंदन में 10वें कॉमनवेल्थ यूथ वजारती इजलास के इफ्तिताही सेशन से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नौजवानों को आगे बढ़ने के लिए मौक़े की फ़राहमी ज़रूरी है। तालीम और तरबियत की फ़राहमी से बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। Aiming higher, delivering more for young people expresses the combined aspiration and commitment of the Commonwealth family to invest in and promote young people's development, particularly through the creation of opportunities for youth employment and entrepreneurship, recognizing that future success of the Commonwealth rests with the continued commitments and contributions of young people. All Commonwealth member states have taken a significant step to educate and train youth, empower girls, and raise awareness about climate change, artificial intelligence, and other important areas. निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने लंदन में कॉमनवेल्थ यूथ वजारती इजलास के मौके पर रवांडा के वज़ीर नौजवानान डॉक्टर अब्दुल्ला अतुमत विश्वा से मुलाकात की। मुलाकात में नौजवानों की तरक्की के मौके तलाश करने और ताउन पर गुफ्तगू की गई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों जानिब से दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने श्रीलंका की यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर रोशन राणा सिंघा के साथ भी मुलाकात की। दोनों वज़रा ने नौजवानों की तरक्की के बाहमी मौक़े और ताउन पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में खेल और तालीम के शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़ किया गया। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के माबैन दो तरफ़ा बहरी मश्क नसीम उल बहर और दर अल साहिल सऊदी अरब के शहर अल जुबैल में अख्ताम पज़ीर हो गई। बहरी मश्क नसीम उल बहर में दोनों ममालिक के जंगी बहरी जहाज़ और रॉयल सऊदी एयरफोर्स के तैयारों ने हिस्सा लिया। बहरी मश्क दर अल साहिल में दोनों ममालिक के मैरीन्स और स्पेशल फोर्सेस ने हिस्सा लिया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मश्क में रिवायती और गैर रिवायती खतरात के खिलाफ मुश्तरका बहरी ऑपरेशंस का मुजाहरा किया गया। पाक बहरिया, सऊदी बहरिया और फ़ज़ाइया की यूनिट्स ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। नाज़रीन, मेजर अजीज भट्टी शहीद जंग सितंबर का वो दरख्शां सितारा है जो आने वाली नस्लों के लिए मशअले राह बन चुका है। जिंदा कौमें अपने मोहसिनों के एहसानात को फरामोश नहीं करती। मेजर राजा अजीज भट्टी के यौम शहादत पर अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने शहीद को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया है। तफसील बताएंगे राना शहजादुस्सलाम। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के 58वें यौम शहादत पर दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी और दुआओं के साथ हुआ। उलमा इकराम ने कहा कि शोहदा का लहू हम पर कर्ज है। शहीद हमेशा जिंदा होते हैं और शहीद का खून कभी रायगा नहीं जाता। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए पुरवकार तकरीब हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसू मुनीर की जानिब से शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए गए। ऑफिसर कमांडिंग 17 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए फातह खानी की और मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए दुआ की। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद के यौम शहादत के मौके पर अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स ने शहीद को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक लहू से सरजमीन वतन की आबियारी करते हुए अजली दुश्मन भारत की फौज पर अपनी शुजात और बहादुरी की धाक बिठाते और उसके मजमूम अजायम को नाकाम बनाकर मेजर अजीज भट्टी शहीद ने साबित कर दिया कि बहादुर सिपाही मुश्किलात में घबराया नहीं करता और मुल्क के दिफा की खातर किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करता। बिलाशुबा मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद की शहादत अफवाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों की अजीम मिसाल है। पाकिस्तान के ये दरख्शिंदा सितारे जिन्होंने मुल्क की आबरू के लिए अपनी जान निछावर की, बिलाशुबा इज्जत व तकरीम के मुस्तहिक हैं। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
افغانستان کے صوبے پکتیکا میں مفتی نور ولی کا دست راست دہشت گرد کمانڈر بادشاہ خان بارودی سرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا ہے۔ دہشت گرد بادشاہ خان انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھا اور پاکستانی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی مختلف کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ شمالی وزیرستان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے پاک فوج کی بے لوث خدمت کا سلسلہ جاری ہے۔ پاک فوج کی مسلسل کاوشوں سے شمالی وزیرستان کے طلبہ ملک کے بہترین سکولز میں زیر تعلیم ہیں۔ اس حوالے سے خصوصی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ہمارے میس میں صحت کو سنت کے مطابق لذیذ کھانا کھانے کو دیا جاتا ہے۔ پاکستانی بھی دل ہے سے دھڑکن دھڑکن گونج رہی ہے اپنے وطن کے نام، اپنے وطن کے نام، چڑھتا سورج ہے اپنا پاکستان۔ لائبریری میں مختلف موضوعات پر کتب اور میگزین دستیاب ہے جو طلبہ کو معلومات کی تلاش کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ یہاں پر کمپیوٹر لیب میں تعلیمی پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے بہترین سہولیات موجود ہیں۔ خوشیاں دھاگے ہیں باندھے ہیں اپنے جن سے، ہمارا اساتذہ نے ہماری ہر تعلیمی مرحلے میں مدد کی ہے۔ میں ترکی اسمارٹ فاؤنڈیشن اور پاکستان آرمی کا شکر گزار ہوں۔ میں پاک آرمی کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں علی گڑھ پبلک اسکول کے داخلہ لیا ہے۔ میں شمالی وزیرستان سے ہوں، پاک آرمی کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے علی گڑھ اسکول میں داخلہ دیا۔ علی گڑھ اسکول میں پڑھائی بھی اچھی ہے۔ بین الاقوامی سے لے کر قومی مواقع تک جب تعلیمی نمائش کی بات آتی ہے تو یہ ادارہ میرے لیے بہت مددگار ہے۔ پاک فوج کی بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے یہ تعلیمی موقع فراہم کیا تاکہ میں اپنا مستقبل بہتر بنا سکوں۔ ایک لڑکی ہونے کے ناطے سے میرے لیے تعلیم کا موقع بہت اہم ہے۔ پاک فوج کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اپنا مستقبل سنوارنے کا ایک بہتر موقع فراہم کیا۔ خیبر پختونخوا میں خام تیل اور گیس کے نئے ذخائر تلاش کر لیے گئے ہیں۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی کے اعلامیے کے مطابق صوبہ خیبر پختونخوا میں ناشپا کنویں سے 830 بیرل یومیہ خام تیل اور 10 لاکھ مکعب کیوبک فٹ یومیہ گیس کی پیداوار شروع ہو گئی ہے۔ ترجمان کے مطابق کنویں سے حاصل ہونے والی گیس کو SNGPL کے نیٹ ورک میں شامل کر دیا گیا ہے، جبکہ تیل اور گیس کی پیداوار کو مزید بہتر بنانے کے لیے تیز رفتاری سے کام جاری ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع راجوری میں ایک بے گناہ نوجوان کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوج نے نوجوان کو ضلع کے علاقے کھاوا میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ قابض فوج نے ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں رواں سال 68 کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ جنوری 2023 سے اگست 2023 تک 13 نوجوانوں کو دوران حراست شہید کیا گیا۔ اس عرصے کے دوران حریت رہنماؤں اور کارکنوں، خواتین اور تاجروں سمیت 2900 افراد کو کالے قوانین کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے رہنما محمد یوسف طارقامی اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی نے سری نگر میں اپنے بیانات میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ کشمیری عوام اپنے ہی پانیوں سے پیدا ہونے والی بجلی مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے اسمارٹ میٹرز کی جبری تنصیب کو کشمیریوں کی زندگی کو مزید مشکل بنانے کی کوشش قرار دیا۔ کولگام میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سیب کے کاشتکاروں نے غیر ملکی پھلوں پر 100% درآمدی ڈیوٹی لگانے کا مطالبہ کیا۔ اس تقریب کا انعقاد سیب بچاؤ کشمیر بچاؤ کے عنوان سے فارمرز فیڈریشن نے کیا تھا۔ سیمینار میں سینکڑوں کسانوں اور پھلوں کے کاشتکاروں نے شرکت کی۔ دوسری جانب جنیوا میں ایک سیمینار میں مقررین نے مقبوضہ جموں کشمیر میں اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے عدلیہ کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے پر بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کچھ اور خبریں شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ محمد نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچیں گے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ملکی معیشت کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ ایک بار پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی۔ 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور پورا پاکستان انشاءاللہ میاں نواز شریف کی واپسی کا منتظر ہے اور انشاءاللہ دوبارہ معیشت اور ملک
उसी तरह तरक्की करेगा जहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को 2017 में छोड़ा था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उनकी जमात जान मोहम्मद महर के अहल खाना के साथ इंसाफ के हुसूल तक खड़ी रहेगी। सखर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जान मोहम्मद महर के कत्ल पर बहुत दुख हुआ, उनके केस में GIT भी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI की पॉलिसी ने दहशतगर्दी को मुल्क में आने की इजाज़त दी, दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर को कैफरे के दार तक पहुँचाया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का पहला बाकायदा इजलास लाहौर में हुआ, जिसकी सदारत पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन ने की। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान और मरकजी रहनुमाओं ने इजलास में शिरकत की। इजलास में हम कौमी उमूर समेत आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से दीगर सियासी बातों से मुशावरत पर भी गौर किया गया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुल्की माशी इस्तेहकाम के लिए मैदान में आई है। उन्होंने कहा कि अवाम की मुश्किलात के इजाले के लिए आज के पार्टी इजलास में मौसर हिकमत अमली वज़ा की गई। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उम्मीद है हमारी जमात आइंदा इंतखाबात में भारी मैंडेट से कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि कराची के अवाम जानते हैं कि कराची की सही मानों में खिदमत MQM पाकिस्तान ने ही की है और आइंदा भी करती रहेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने दीर तिमरगराह में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाए। निगरान वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकिर से जमात इस्लामी के वफ़द ने हाफिज़ नईम उर रहमान की सरबराही में मुलाकात की। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि बल्दियाती निज़ाम को मुस्तहकम और मजबूत करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिदायत जारी की हैं। बाद में वज़ीर आला हाउस से बाहर मीडिया से बात करते हुए हाफिज़ नईम उर रहमान ने कहा कि यह अमर खुशाइंद है कि सियासी जमातों के लिए वज़ीर आला हाउस के दरवाजे खुले हैं। पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि मुल्की मसाइल का हल शफाफ इंतखाबात में है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्कगीर दौरों के जरिए अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि लाहौर में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आइंदा इंतखाबात के हवाले से लाहेमल तय किया जाएगा। पोठोहार की सरजमीन हज़ारों साल पुरानी तहजीब की वारिस है। किताब रावल राज की तहकीक बताती है कि रावलपिंडी और जदीद इस्लामाबाद हर मजहब के मानने वालों का मस्कन रहा है। इस्लामाबाद में सीनियर सहाफ़ी और मुहक्किक सज्जाद अजहर की किताब रावल राज की तकरीब रुनुमाई का अहवाल जानते हैं अम्माद अवान से। खित्ते पोठोहार की जरखेज़ी आनंद बख्शी, दिलराज सिंह, सुनील दत्त, दिलदार परवेज भट्टी और इन जैसे बेशुमार बड़े नामों से भरी पड़ी है। ज़रूरत सिर्फ खोज लगाने की है ताकि हम अपनी आइंदा नस्लों को तारीख का वो पहलू पढ़ा और समझा सकें जो अब तक नज़रों से ओझल है। ये कहना था नेशनल प्रेस क्लब में सज्जाद अजहर की किताब रावल राज की तकरीब रोनुमाई से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का। सदर महफिल स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ थे, जिन्होंने पोठोहार खित्ते की अहमियत पर रोशनी डाली। ईशर सिंह ईशर एक शायर था हमारे नडाली का, उसने कहा कि पे गंढा खोलो ते मजहब नहीं पिटदा, पे झूठ बोलो ते मजहब नहीं पिटदा, पे घट तोलो ते मजहब नहीं पिटदा, पर जे जंजू दे तागे नू वल पै गया है ते मजहब दी छाती च सल पै गया। किताब में रावलपिंडी और मौजूदा इस्लामाबाद के तारीखी मकामात, रहन सहन और तहजीब व तमद्दुन पर मबनी इलाकाई दास्तानों पर सेरे हासिल गुफ्तगू हुई। नामवर अदीब इफ्तिखार आरिफ, सीनियर सियासतदान और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद, सैयद जफर अली शाह, सीनियर सहाफ़ी मोहसिन रजा खान और हसन खान समेत अहले कलम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सहाफ़ी का काम तारीख गुजरने पर अदब का हिस्सा नहीं बन पाता, लेकिन इस किताब के मुदरजात यकीनी तौर पर लिटरेचर का हिस्सा हैं। दरियाए सवां पहले की तरह अब नहीं बहता, लेकिन इसका हवाला तारीख से दिलचस्पी रखने वालों के लिए मुस्तकबिल में भी किसी अथॉरिटी से कम नहीं होगा। अमाद अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से तुर्की के सफ़ीर मोहम्मद पिशाची ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में इक़्तिसादी ताल्लुकात के इस्तेहकाम और बाहमी ताअवुन बढ़ाने के अज़्म का इज़हार किया गया।
پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف نے نگراں وفاقی وزیر منصوبہ بندی محمد سمیع سعید سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، توانائی اور اقتصادی شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ نگراں وزیر منصوبہ بندی نے سیاحت کے شعبے میں تعاون کے مواقع تلاش کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ نگراں وفاقی وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز نے ایتھوپیا کے نئے سال کی تقریب کے موقع پر کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی مواقع بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دونوں ملکوں میں $1.5 کروڑ سے زائد کے تجارتی حجم میں اضافہ کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مختلف افریقی ممالک میں تجارت اور سرمایہ کاری کے دفاتر کے قیام کا بھی اعلان کیا، جس کا مقصد اقتصادی روابط کو فروغ دینا ہے۔ ایتھوپیا کے سفیر جمیل بیکر عبداللہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایتھوپین سفارت خانے کے قیام کے بعد دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید بہتری آئے گی۔ نگراں وفاقی وزیر تعلیم و پیشہ ورانہ تربیت مدد علی سندھی کے احکامات پر تحریک آزادی پاکستان کے رہنماؤں کے پورٹریٹس نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد میں آویزہ کیے گئے۔ نگراں وفاقی وزیر نے اس موقع پر کہا کہ ان رہنماؤں کی خدمات کو جتنا اجاگر کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ملتان میں پولیس شہداء کے خاندانوں میں مفت پلاٹس کے لیٹرز تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ نے خستہ حال نوابپور روڈ، ممتاز آباد تھانے اور نشتر اسپتال کا بھی اچانک دورہ کیا۔ رپورٹ کریں گے فرحان مرزا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے 32 پولیس شہداء کے خاندانوں میں پلاٹ کے الاٹمنٹ لیٹر تقسیم کرتے ہوئے پوزیشن فیس اور ٹرانسفر فیس وصول نہ کرنے کا بھی اعلان کیا۔ اس موقع پر نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پاک فوج اور پولیس کے شہداء ہمارے ہیرو ہیں جو سرحدوں اور ہمارے گھروں کی حفاظت کرتے ہوئے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ ان کا کہنا تھا کہ زندہ قومیں اپنے ہیروز کو فراموش نہیں کرتی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے ملتان میں قیام کے دوران رات گئے نشتر اسپتال، ممتاز آباد تھانے اور خستہ حال نوابپور روڈ کے دورے کیے۔ وزیر اعلیٰ نے نوابپور روڈ کا معائنہ کرتے ہوئے مقامی دکانداروں سے ملاقات کی۔ اس دوران دکانداروں نے خراب سڑک کی وجہ سے مشکلات بارے شکایات کی۔ محسن نقوی نے سڑک کی جلد تعمیر و بحالی کا حکم دیا۔ صوبائی وزراء کے ہمراہ ممتاز آباد تھانے کا دورہ کرتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ نے فرنٹ ڈیسک کا معائنہ کیا اور سائلین کی درخواستوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے حوالات میں بند ملزمان سے ان کے کیسز بارے بھی دریافت کیا۔ نشتر اسپتال کے دورے میں مریضوں اور تیمارداروں نے مفت ادویات، کلینیکل ٹیسٹ، انجیکشن اور سرنجز کی عدم دستیابی سمیت طبی سہولیات کے فقدان بارے شکایات کے انبار لگا دیے۔ وارڈز میں اے سی کی بندش اور پارکنگ میں اوور چارجنگ کی شکایت پر نگران وزیر اعلیٰ نے ایم ایس کی سرزنش کرتے ہوئے اسے فوری طور پر تبدیل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ نے مریضوں کے ٹیسٹ باہر سے کرانے پر لیب انچارج کے خلاف کارروائی اور پارکنگ اوور چارجنگ پر ٹھیکیدار کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا بھی حکم دیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ صوبے میں ہسپتالوں کی بہتری کے لیے وہ مسلسل دورے کرتے رہیں گے۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ نگراں بلوچستان کابینہ کا اجلاس وزیر اعلیٰ امیر علی مردان نوکی کی صدارت میں ہوا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی معاونت کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ ہمیں مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق فرائض ادا کرنے ہیں۔ امیر علی مردان نے کابینہ کو وزارتوں اور محکموں کی کارکردگی رپورٹ سی ایم سیکریٹریٹ کو باقاعدگی سے بھیجنے کی بھی ہدایت کی۔ نگراں صوبائی وزیر اطلاعات جان اچکزئی نے کابینہ کے اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ بلوچستان میں ذخیرہ اندوزوں اور پیٹرول اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سابق صوبائی وزراء کے زیر استعمال اب تک 50 سرکاری گاڑیاں واپس لی جا چکی ہیں۔ بلوچستان کو بڑے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ لاہور میں گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کی صدارت میں اجلاس ہوا اور بورڈ نے صادق پبلک اسکول کے سالانہ بجٹ 2023 اور 2024 کی منظوری دی ہے۔ گورنر پنجاب نے فیسوں میں 20% سے زائد مجوزہ اضافے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فیسوں میں اضافے سے کئی طلبہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ مستحق طلبہ طالبات کے لیے مالی امداد اور اسکالرشپس کے لیے اسکول کے ریونیو کے لیے 5% مختص کیا جائے۔ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کی صدارت میں ورکس اینڈ سروسز کا اجلاس ہوا، جس میں بتایا گیا کہ گھوٹ کی کند کوٹ پل پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت تعمیر کیا جا رہا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے منصوبے پر 4 ماہ سے کام بند ہونے پر اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ گھوٹ کی کند کوٹ پل کا کام فوری طور پر شروع کیا جائے اور کام کا معیار کو برقرار رکھا جائے۔ انہوں نے متاثرین کو زمین کی ادائیگیاں کرنے کی بھی ہدایت کی۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری سے ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین رند نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں امن و امان میں بہتری کے اقدامات، نگہبان کیمروں کی تنصیب، اسٹریٹ کرائمز کی صورتحال، غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف پولیس کے آپریشن سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाजी गुलाम अली ने जम अजला में अराजी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक आगाही सेशन में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि महकमा रेवेन्यू का USAID की तकनीकी मुआवनत से अराजी रजिस्ट्रेशन मनसूबा काबिल कदर इकदाम है। हाजी गुलाम अली ने कहा कि अमली तौर पर ऐसे इकदाम होने चाहिए जिससे आवाम के लिए आसानियाँ पैदा हों। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और साबिक IG राना मकबूल लाहौर में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे और लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा कल 10:30 बजे ग्रीन एक्टर राइवन रोड लाहौर में अदा की जाएगी। राना मकबूल पंजाब के प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहे। वो 2018 में मुस्लिम लीग नून की हिमायत से सेनेटर मुंतखब हुए। वो सेनेट की काबीना कमेटी के चेयरमैन भी रहे। उन्होंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन के तौर पर फौजदारी कवानीन में तरमीम के लिए भी बहुत काम किया। पाकिस्तान टेलीविजन के सीनियर कैमरामैन शुजा रहमान दुर्रानी इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 43 बरस थी। वो जिगर के आर्जे के बायस लाहौर में ज़ेर इलाज थे। शुजा दुर्रानी गुज़िश्ता 22 बरस से PTV न्यूज़ इस्लामाबाद सेंटर में बतौर कैमरामैन काम कर रहे थे। उन्होंने पसमानदगान में 2 बेटियां और बेवा को सुगवार छोड़ा है। PTV के लिए उनकी खिदमात को तादेर याद रखा जाएगा। 20वीं सदी की उर्दू ज़बान के मुमताज़ शायर, नसरनिगार, मुसन्निफ और सहाफ़ी रईस अमरोहवी का आज 109वां यौम पैदाइश है। उनकी शायरी और अदबी ज़िंदगी के हवाले से हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। बड़े सगीर के बुलंद पाया शायर और मुमताज़ सहाफ़ी रईस अमरोहवी, जिनका ख़ानदानी नाम सैयद मोहम्मद मेहदी था, आप सैयद मोहम्मद तकी और जॉन एलिया के बड़े भाई थे। रईस अमरोहवी 12 सितंबर 1914 को भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अमरोहा के इल्मी और अदबी घराने में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद 19 अक्टूबर 1947 को हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और कराची में सुकूनत इख्तियार की। वो 1936 में सहाफ़त से वाबस्ता हुए। इब्तिदा में अमरोहा के अखबारात, किरतास और मुखबर आलम की इदारत की। बाद अज़ां रोजनामा जिद्दत के मुदीर आला रहे। सहाफ़ती कालम के अलावा आपके कसायद, नोहे और मसनवियाँ उर्दू अदब का बेशबहा खजाना है। नस्र में आपने नफ्सियात और फ़लसफ़ा हरवानियत को मौज़ूअ सुखन बनाया। रईस अमरोहवी दौरे हाजिर के मुमताज़ शोरा में से थे। वो तमाम असनाफ़ सुखन में क़ादिरुल कलाम थे। गज़ल हो या नज़्म, क़तात हों या रुबाइयात, अदब और फ़लसफ़ा हो या तसव्वुफ़, संजीदा मज़ामीन हों या तंज़ो मिज़ाह, वो हर मैदान के मर्द मैदान थे। रईस अमरोहवी की यहाँ इल्म अदब में जहाँ हिकमत और फ़लसफ़े की चाशनी है, वहीं पर तज़ब्ज़ुब और तशकीक की मिलावट भी पाई जाती है। रईस अमरोहवी की तसानीफ़ में मसनवी लाला और सहरा, पसे गुब्बार, हिकायत, अना मिनल हुसैन, मलबूस लिबास बहार और आसार शामिल हैं। जबकि नसरी तसानीफ़ में अजायब नफ्स, ले सांस भी आहिस्ता, आलम बरज़ख और अच्छे मिर्ज़ा शामिल हैं, जो उर्दू अदब में मुस्तनद हैसियत की हामिल हैं। 22 सितंबर 1988 को रईस अमरोहवी 74 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। ताहम उर्दू अदब में अपने काबिल कदर काम की वजह से उन्हें तादेर याद रखा जाएगा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वफाकी मोहतसिब एजाज अहमद कुरैशी ने एशिया मोहतसिब एसोसिएशन की बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि मोहतसिब के इदारों का मकसद लोगों के बुनियादी हकूक़ की हिफाजत और गुड गवर्नेंस का क़याम है। वफाकी मोहतसिब ने कहा कि पाकिस्तान में एहतसाब के इदारे बहुत मौसर और फ़ाल हैं। मोहतसिब के इदारे से आम आदमी को फौरी इंसाफ फराहम किया जाता है। नाज़रीन, तुर्की और रूस अनाज की बरामद के माहदे पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान ने कहा है कि मॉस्को अन्कारा को रियायती नरखों पर 10 लाख टन अनाज फरोख्त करेगा, जिसे तुर्की इंतहाई ज़रूरतमंद ममालिक तक पहुँचाएगा। उन्होंने कहा कि तुर्की रूस से अनाज की दरामद में इजाफा करने के लिए तैयार है। उन्होंने मगरबी ममालिक पर जोर दिया कि वो रूसी अनाज और खाद की आलमी मंडी में नकलो हमल को यकीनी बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। जुलाई 2022 में अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्की के ताउन से रूस और यूक्रेन ने बहर असवद के जरिए अनाज की तरसील का मुआहदा किया था। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए रूस पहुंच गए हैं। शुमाली कोरिया के अस्करी हुकाम ने तस्दीक की है कि किम जोंग उन ज़ाती ट्रेन के जरिए रूस पहुंचे हैं। किम जोंग उन के साथ रूस से आने वाले वफ्द में वज़ीर ख़ारजा, आला अस्करी ओहदेदार और असला साजी की सनत से वाबस्ता हुकाम शामिल हैं। बहरा रूम से आने वाले समुद्री तूफान डेनियल ने लीबिया के मशरकी शहर डेरना में तबाही मचा दी है। तूफान और 2 डैम्स टूटने से हलाकतों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। 5000 से जायद अफराद लापता हैं। हलाक होने वालों में हिलाल अहमर के 3 रजाकार भी शामिल हैं। हंगामी खदमात के तर्जुमान के मुताबिक सैलाबी पानी ने और मुख्तलिफ हादसात में जख्मी होने वालों की तादाद 7000 से तजावुज कर चुकी है।
उधर मराकश में 6.8 शिद्दत के तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में अमवात की तादाद 2,900 से बढ़ चुकी है, जबकि 2,500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। मकामी और बैनुल-अक़वामी इमदादी टीम्स मुनहदम होने वाले मकानात के मलबे में जिंदा बच जाने वालों और मुतासरीन की तलाश जारी रखे हुए हैं। रेड क्रॉस ने मराकश के लिए फौरी तौर पर 10 करोड़ डॉलर इमदाद की अपील की है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ की डायरेक्टर कैरोलिन होल्ट ने जिनेवा में सहाफ़ी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मराकश में अफजान सेहत, पानी, सफाई सुथराई, खेमे, खाने पीने की अशिया के लिए फंड्स की ज़रूरत है। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम खित्ता पोटोहार, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।